give the answer at the same time. Okay. Any question you can ask related to ear examination. First, see this video. Like every exam, we start off with inspection, just looking at the placement of your ears, looking at the external canals for any discharge, drainage, signs of infection, or inflammation. Going to perform the whisper test. You can either occlude the patient's ear or have the patient occlude their own ear. Occlude the ear, and I'm going to whisper a common 2-syllable phrase like apple or baseball, and have Miley tell me what I said. Good. And then you repeat the same on the opposite ear. Baseball. Very good. Next, I'm going to do what we call can't see video. Test. Okay, sorry. Just wait. यार ये वीडियो उनको दिखाई नहीं दे रही है, वीडियो उनके साथ एक्चुअल में उनको वीडियो नजर नहीं आ रही है। दोबारा मेरे शेयर कर दीजिए। with inspection. Hello student, now you see video? Looking at the external canal. Hello students, now you can see video? Please answer. No. You are screen sharing. Hello. Now you can see video. Signs of infection or inflammation. Hello. Going to perform the whisper test. You can either occlude the patient's ear or have the patient occlude their own ear. Occlude the ear, and I'm going to whisper a common 2-syllable phrase like apple or baseball, and have Miley tell me what I said. Good. And then you repeat the same on the opposite ear. Baseball. Very good. Next, I'm going to do what we call the tug test, where I take the pinna with my hand and just lightly tug back, up, and down on the auricle or the pinna. If there's any pain there, that indicates an inflammation and possible infection in the internal canal. So always do the tug test before you go ahead and put the scope into the ear. Put on the speculum. You want to use the largest speculum that you can that will fit comfortably into the patient's ear. On adults, you'll pull up and back. With children, you pull down and back, and that will just straighten out the external canal. Pulling back and up on her ear, inserting the scope, and looking into her external canal, and finding her tympanic membrane. Just going to take a look at this ear. And note how I'm bracing against, I'm pulling up and back with my left hand on her ear. With my right hand, the hand that has the otoscope with it, I'm bracing against the side of her face. I do this so that the scope isn't going to get out of my hand and jam into her ear, which is very uncomfortable. It's really important when you're seeing pediatric patients, since they're constantly moving their heads, and you don't want to cause any trauma to their external ear canal. When you're looking at the internal ear canal and finding the tympanic membrane, it's important to look at the specific structures of the tympanic membrane, including the bony prominences of the malleus, the handle of the malleus, and the umbo, looking for the light reflex and all the different structures there, assessing for any redness. It should be a nice curly white color, which yours were, and if it was red or bulging, that can indicate some signs of infection. The last parts of the ear exam are done using the tuning fork. This is how we test it. It's called a Weber and Ring test. Weber test assesses for conduction into the ear. I'm going to strike the tuning fork and place it on her forehead or on the top of her crown of the head, and ask her which ear she hears or feels it in. She should hear it in both, just as she does equally. You're testing to see if there's any lateralization to one ear or the next, which can indicate some different types of hearing loss. Strike the tuning fork, place it on the mastoid bone behind the ear. Once you can no longer hear it, place it in front of the ear until she can no longer hear it again. Air conduction should be greater than bone conduction. So AC, or air conduction, should be greater than bone conduction, or BC.
Now I show you the second video of examination of ear. So we see this one. So we're going to now talk about. Hello students, did you hear? There are some structures of the external ear that you should be aware of. This is referred to as helix. This is referred to as helix. This is the locule of the ear. This is the radius of the ear. We can see the external helix. Again, no video. Okay, wait. ये 12 मिनट शेयर कीजिए. Now you can see video, students. There are some structures of the external ear that you should be aware of. Students, no. Okay, wait. This is referred to as helix. This is the locule of the ear. This is the radius of the ear. Now, beta, did you see video? The external entree is okay. If we look at here, whoa. So, we're going to Okay, see this video, then we will start discussing. So, we're going to now talk about the examination of the ear. There are some structures of the external ear that you should be aware of. This is referred to as the helix. This is here. We can see the comparable the external entree that goes in here. If we look in here forward, we can see mastoid tip here, which is from we can allocate the mastoid tip for tenderness. If this were a tender, Brittany's ear was pushed outwards and downwards, and there was fluctuations behind here, we would suspect mastoiditis. So we'll now talk about the examination of the external auditory canal, the systemic membrane, and the biliary space. When you're examining the structure, we use an instrument called an otoscope. An otoscope also has an attachment on the side of it here to which a bulb can be attached. With this bulb, I can pump pressure through the otoscope and actually see the tympanic membrane moving. And the tympanic, if the middle ear space contains fluid, the tympanic membrane would not move. So it is a very good diagnostic tool for diagnosing things such as otitis media, or otitis media. Before I insert the otoscope, I need to use my ensure that you don't cross my hands. So I use one hand to grab the henna here.
Okay, students, you can see this tympanic membrane. Sir, no audio. Why no audio? अभी आ रही है बेटा आवाज? वीडियो की आपके पास वॉइस आ रही थी? हेलो स्टूडेंट्स, नो वॉइस। जी सर, अब आ रही है। ओके, पहले आपको वीडियो की कोई भी वॉइस नहीं आई थी? ओके ओके, देखिए वीडियोस में अभी आपने देखा कि वी हैव शो यू द पिक्चर्स ऑफ टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। वीडियो की वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, आई विल शेयर विथ यू ऑन योर ईमेल एड्रेस। सो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिएगा ये वीडियो, लिंक वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, अभी मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हेलो, डिड यू हियर मी? ओके, so now I will discuss with you the examination of the ear. अब मैंने देखिए आपको I have show you the two videos, और अब इसमें ये करते हैं कि first how to start the examination. First देखिए, कभी भी आप पेशेंट से मिलते हैं तो first introduce yourself, सलाम, हाय, हेलो, एंड उसके बाद उसको अपना नाम इंट्रोड्यूस वगैरह बताएं कि देखिए मेरा नाम ये है डॉक्टर राजेश, और मैं आपका मुआयना करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और आपकी बीमारी के मुतालिक, ताकि हमें पता चल सके। ओके, तो उसके बाद आफ्टर डूइंग सलाम आप उसको एक सिंपल एक बॉडी पोजीशन होता है। बॉडी पोजीशन कैसे होता है? जस्ट सिट इन अ वे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। आपके हमेशा जो लेग्स हों वो पेशेंट के साइड पे होनी चाहिए, और आपके तकरीबन समझ लीजिए कि राइट साइड जो है लेग पेशेंट की लेफ्ट लेग की तरफ होनी चाहिए। वो आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग पे आएंगे वो हम आपको सिखा देंगे। देन यू हैव टू सेट फर्स्ट द हेडलाइट। हेडलाइट आपने हेड पे लगाई, सी द इल्यूमिनेशन। फर्स्ट यू हैव टू डू द इंस्पेक्शन ऑफ द बोथ ईयर। इंस्पेक्शन आपने फ्रंट से किया, जैसे वो पहली वीडियो में बता रहे थे कि आपने वो इंस्पेक्शन किया। आफ्टर डूइंग इंस्पेक्शन में आप क्या देखते हैं कि दोनों आपके पिनास जो हैं वो एक ही लेवल पे हैं या कोई आगे फॉरवर्डली डिस्प्लेस है। इफ देयर इज एनी वन साइड इज फॉरवर्डली डिस्प्लेस, इट मींस सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी। व्हाट पैथोलॉजी इट मे बी पेशेंट हैज कॉन्जेनाइटल, वो पिना फॉरवर्ड हो। ओके, सेकंड क्या हो सकता है बेटा? मे बी पोस्ट ऑरल, मतलब मेस्टोइड, जो उन्होंने आपको एक बताया सेकंड वीडियो में, यहाँ पे कोई स्वेलिंग हो, सम सॉर्ट ऑफ सिस्ट हो आपकी, सम सॉर्ट ऑफ कोई मैलिग्नेंसी हो, कोई अल्सर हो, कोई एब्सेस हो, तो जिसकी वजह से पिना आपका फॉरवर्ड निकाल होता है। आफ्टर डूइंग इंस्पेक्शन आपने दोनों साइड्स को कंपेयर किया, उसके बाद जो आपको कमांड है, लेट्स सपोज राइट और लेफ्ट ईयर, जो भी आपको एग्जामिनर ने कमांड दिया है या आपका पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, यू डायरेक्टली जंप ऑन दैट वन, और उसके बाद आप उसी पूरा पिना का एग्जामिनेशन करते हैं जो आपको बताया गया कि दिस इज हेलक्स, ड्रोसोफिलक्स, कॉन्का, ट्रैगस, ठीक है, लोब्यूल और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को लाइट से आप फोकस करते हैं। इसमें आपने ये देखना होता है कि देयर में भी नहीं स्कार है, कोई वुंड है, कोई आपका उसमें उसके अंदर आपको सॉरी उसके अंदर आपका कोई भी स्वेलिंग है, सिस्ट है। ओके, आफ्टर एग्जामिनिंग दिस वन, उसके बाद आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में चले जाते हैं। सो विद द हेडलाइट आप क्या करते हैं? पिना को लिफ्ट करते हैं फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और ट्रैगस से आप इसको एंटीरियरली पुश करते हैं। ये देखिए, ये सारी चीजें हम आपको बोर्ड में शो कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू इन दिस वे। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यू कैन सी डायरेक्टली विद द हेडलाइट। उसमें आपको डायरेक्ट क्यों देखना है? टू रूल आउट कि पेशेंट को कोई वैक्स तो नहीं है, पेशेंट के कान के अंदर कोई बॉयल तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं पड़ा, कोई पस तो नहीं पड़ा हुआ। इफ देयर इज अ वैक्स, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का साइज क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल साइज यू हैव टू चूज द प्रॉपर ईयर स्पेक्यूलम। तो आप वो इंसर्ट करते हैं ईयर स्पेक्यूलम, और उसके बाद आप एग्जामिन करते हैं। देन नेक्स्ट, अब उसके अंदर अगर पस आपको सामने कोई भी नजर आ रहा है, देन यू हैव टू टेक पस, यस, या सक्शन लेना है, देन क्लीन दैट होल द पस एंड टेक द पस CS फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड सेंड इट फॉर टू द लेबोरेटरी फॉर कल्चर सेंसिटिविटी। जब पस पूरा क्लीन हो गया, या आपका कान में कोई वैक्स है पेशेंट का, ट्राई करें, अगर वो उस वक्त रिमूव हो सकता है देन बेटर, अगर नहीं हो सकता गिव देम ईयर ड्रॉप, सोडा ईयर ड्रॉप्स दे दें,
और उसके बाद उसको सॉफ्ट करें, देन आप उसको फिर से एग्जामिन करें। अब एग्जामिनेशन में नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड योर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर आपका जो होता है नॉर्मल एडल्ट में लेंथ होता है आपका 24 मिलीमीटर्स, ठीक है, और बच्चों में थोड़ा सा साइज छोटा होता है। सो यू हैव टू एग्जामिन कि उसमें कोई कंजेनाइटल पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू, कोई पॉलिप, कोई ऐसा मास तो नजर नहीं आ रहा है। Then you have to see the tympanic membrane. Now I show you the picture of the tympanic membrane. So इन्होंने देखें आपको ओटोस्कोप करके दिखाया। मैं आपको पहले अभी तो जो है tympanic membrane की पिक्चर दिखा रहा हूँ। Wait with the desktop. Okay, desktop. Okay, now you can see this picture. Did you see this picture? Anybody can answer, please? Did you see this picture? No. I don't know what was the problem. Direct क्यों नहीं आ रहा है? Okay. Share desktop. And now, beta, you can see students. Hello, student. Did you see this picture? No. यार ये पिक्चर दोबारा नहीं जा रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वेट वेट वेट, मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ वो भी नहीं हो रही डायरेक्ट, फिर बंद। Students, did you see picture now? Okay, okay. First you can see with the headlight this tympanic membrane. जब external auditory canal पूरा clean होता है बेटा, then you have to perform the otoscopic examination. On otoscopic examination or on otoendoscopic examination, you can see this tympanic membrane in this way. Normal tympanic membrane you can see in this way. So with otoscopic examination, again आपको पता है कि otoscope उन्होंने आपको जो वीडियो में 2 वीडियोस में दिखाया गया, you have to hold like a pen, और जो examine आपने, let's suppose you have to examine patient left ear, तो आपको otoscope हमेशा अपने left hand में hold करना है। अगर आपने right ear patient का देखना है, so you have to hold your otoscope in the right ear, like a right hand, sorry, in a way of like आपने पेन होल्ड किया हुआ है, और ओटोस्कोप होल्ड करने के बाद आप इंसर्ट करते हैं, बट अगेन उसमें फॉर्मूला सेम होता है। यू हैव टू इंसर्ट द ओटोस्कोप, फर्स्ट यू हैव टू पुल द पिन अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, लैटरली, देन यू हैव टू इंसर्ट द ओटोस्कोप। जब आप ओटोस्कोप इंसर्ट करते हैं तो आपको पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की स्किन नजर आएगी, वहां पे आपने देखना है कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है। देन यू सी दिस tympanic membrane. So this is the tympanic membrane of a patient with left ear. मैं इसको left ear क्यों कह रहा हूँ? Because there is a lot of landmarks in this one. अब देखें आपके पेशेंट को जो लेफ्ट ईयर का जो है नॉर्मल आपको tympanic membrane, ये annulus कहलाता है। This is the annulus, thickening of the जो end of tympanic membrane होता है, जो बिल्कुल आपके बोन्स के अंदर टक हो जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। This is annulus, okay, and this one is cone of light. Cone of light आपका देखें आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाना, ये दिस इज अवर 1 पॉइंट के हमारा ये पेशेंट का लेफ्ट ईयर है। अगर ये कोन ऑफ लाइट इन दिस वे होता राइट ईयर, सो आई लेवल दिस पेशेंट कि ये पेशेंट जो है राइट ईयर है इसका पेशेंट का, ओके। सेकंड लैंडमार्क आपको जैसे ये हैंडल ऑफ मैलियस नजर आ रहा है, दिस इज द हैंडल ऑफ मैलियस, दिस इज पॉइंटेड, और इसके ऊपर ये आपका शॉर्ट प्रोसेस होता है, लेटरल प्रोसेस इसको कहा जाता है। सो लेटरल प्रोसेस आपका जो है लेफ्ट साइड पे होगा, दिस वन इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट। सो ये पास टेंसा है पूरा, दिस वन होल टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ से देखें जैसे मेरा एरो जो घूम रहा है, ये पूरा
this one from this area to this, okay, and इसके साथ आप यहाँ पे देखें ये निच नजर आती है, दिस इज द इंक्यूडोस्टिबिडल जॉइंट और यहाँ पे इनकस नजर आता है, ठीक है बेटा। अब आपने जब इंक्यूडोस्टिबिडल जॉइंट देख लिया एंड मेलियस देख लिया, कोन ऑफ लाइट देख लिया, देन ऑन पिक्चर यू कैन से दिस इज द पेशेंट टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है इसका लेफ्ट ईयर है। अगर यही चीज कोन ऑफ लाइट यहाँ पे होता और ये निच यहाँ पे होता, आपका लेटरल प्रोसेस और मेलियस का ऑपोजिट डायरेक्शन होता एंड ये इंक्यूडोस्टिबिडल जॉइंट और इनकस इस जगह पे आ रहे थे, देन यू कैन से दिस द पेशेंट ऑफ राइट टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ओके, राइट साइड के टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो ऑन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन आपको एक्सप्लोरेटरी कैनाल नजर आएगा, देन यू सी द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के लैंडमार्क्स आपको देखने होते हैं, नॉर्मल आपको ये लैंडमार्क्स नजर आते हैं, कोन ऑफ लाइट, होल पास फ्लैसिडा, दिस वन, ये देखें पास फ्लैसिडा जो होता है दिस इज लाइक अ स्लाइटली पिंकिश होता है, और क्योंकि इसके अंदर आपके सेंट्रल फाइबर्स नहीं होते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हैज 3 लेयर्स, ओके, आउटर स्क्वाइमस और इनर जो होता है म्यूकस एंड मिडिल फाइब्रस लेयर होता है। सो आपके जो तीनों लेयर्स होते हैं वो पास टेंसा के अंदर होते हैं, पास फ्लैसिडा के अंदर आपका जो मिडिल होता है फाइब्रस लेयर वो नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज स्लाइटली पिंकिश, आपको इसमें और इसमें कलर में डिफरेंशिएट हो रहा है, ओके बेटा। सो नॉर्मल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन you can see in this way. After watching this tympanic membrane, I can show you another picture. उसके अंदर आपको जो है एक मैं परफोरेशन की पिक्चर दिखा रहा हूँ। Okay, now I show you this another picture. Did you see this picture, beta? Hello, students, please answer. No, I don't know what is the problem. Yeah. Stop sharing. Now you can see, beta. Students. Okay. So this is a patient picture with a tympanic membrane. अब आप में से इसमें से कोई मुझे बता सकता है कि ये राइट ईयर है या लेफ्ट ईयर है? एनीबॉडी? ये राइट ईयर का है, लेफ्ट ईयर का है tympanic membrane? एनीबॉडी आंसर? रॉन्ग या राइट? देखिए आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट, हाउ? देखिए राइट ही है 100%। हाउ? How? Okay, I can appreciate. देखिए इसमें आपका परफोरेशन है, देयर इज, आप टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में ये होल आपको नजर आ रहा है, देयर इज अ सेंट्रल परफोरेशन इन द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, सेंट्रल, और इसका शेप जो है स्फेरिकल है, और जो है इसमें कोन ऑफ लाइट एब्सेंट है। कोन ऑफ लाइट आपको इसलिए एब्सेंट नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ परफोरेशन, मेन तो आपकी उसी जगह पे है जहाँ पे कोन ऑफ लाइट है, ओके। और सेकंड ये होता है कि जब परफोरेशन हो जाती है समटाइम्स वो फाइब्रस हो जाते एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं, तो इस वजह से भी कोन ऑफ लाइट चला जाता है। बट अगेन आई कैन से दिस इज द राइट। उसका एक मेन रीजन देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, देखिए ये आपका मेलियस पड़ा हुआ है, दिस इज योर मेलियस, एंड इसका आप ये देखिए लेटरल प्रोसेस आपका किस तरफ आ रहा है, अपोजिट लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसमें हम इंक्यूडोस्टिबिडल जॉइंट इतना ऑब्वियस नहीं देख सकते, ये थोड़ा सा एक शेडो आ रहा है बिकॉज ऑफ ये आपका टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है स्क्लेरोटिक हो गया है, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से आपका यहाँ पे जो है पैचेस आ जाते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन मे बी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन थिक हो जाता है तो आप नीचे उसके मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर्स नहीं देख सकते हैं। सो इन दिस पेशेंट यू कैन सी देयर इज अ परफोरेशन in the tympanic membrane, that's a central perforation, single central perforation at the anterior inferior part. अब देखिए हम नॉर्मल tympanic membrane का जो पार्स टेंसा होता है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप एक लाइन मिड में क्रिएट करते हैं ओवर द हैंडल ऑफ मेलियस, और एक लाइन आप उसके, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहां पे हैंडल ऑफ मेलियस। अब देखिए अगर आपने एक लाइन यहाँ से बनाई
और दूसरी लाइन आपने यहाँ से बनाई तो हमारा पास्ट टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पोस्टीरियो सुपीरियर, पोस्टीरियो इंफीरियर, एंटीरियो इंफीरियर, एंटीरियो सुपीरियर। ओके, सो आपका ये टेम्पनिंग मेम्ब्रेन 4 पार्ट्स हो गया था। नाउ अगेन आई कैन शो यू। अच्छा, इसमें अब ये मैं आपको एक पिक्चर, वो पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, चेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, डिड यू हियर मी स्टूडेंट्स? आपको आवाज आ रही है? ओके, आपको पिक्चर नजर आ रही है बेटा? इसमें डेस्कटॉप यहाँ ये डेस्कटॉप जस्ट वेट बेटा, वेट असल में लाइट चली गई थी, प्रॉब्लम है डेस्कटॉप। हाँ चले बेटा, वेट करें। अच्छा ये हाँ चलिए, यहाँ से कर लूँ, यहाँ से करूँ जी। बेटा आपको पिक्चर नजर आ रही है अभी स्टूडेंट्स? आपको तस्वीर नजर आ रही है बेटा? ओके, सो वी वाज डिस्कसिंग कि पेशेंट है दिस परफोरेशन। सो हमने 4 क्वाड्रेंट्स बता दिए आपको। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द टेम्पनिक मेम्ब्रेन। पास्ट टेंस आगे होते हैं और पास्ट वेस्टा का एक ही पार्ट होता है। ये आपके एंटीरियर में, ये पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड होता है जो हैंडल ऑफ मेलियस के पीछे होता है, और ये एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड होता है। ओके, सो आफ्टर सीइंग दिस वन, जब आप ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन देख लेते हैं, देन आप उसके बाद दोनों ईयर्स को एग्जामिन कर लेते हैं। अब आफ्टर एग्जामिनिंग बोथ ईयर्स यू हैव टू परफॉर्म द वॉइस टेस्ट। अब हमारी वॉइस असेसमेंट आ जाती है, बिकॉज यू ऑल नो हमारे ईयर का व्हाट इज द मेन फंक्शंस, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ आवर ईयर? एनीबॉडी? ईयर के क्या काम होते हैं बेटा स्टूडेंट्स? हियरिंग एंड बैलेंस, वेरी गुड। सो हमें ये दोनों चीजें अब परफॉर्म करनी है। आपने फर्स्ट आपने ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन या ओटोएंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद जब आपने कर लिया, तो आप फिर उसके बाद हियरिंग असेसमेंट करते हैं पेशेंट की। हियरिंग असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट, तो यू हैव टू स्टार्ट विद सर्टेन टेस्ट। जैसे कि देखिए, हियरिंग असेसमेंट के लिए पहले तो आप एक सिंपल सा टेस्ट होता है, आपने कोई भी पेशेंट के आगे थंब एंड फिंगर रख दी एंड उसको रब किया। ये ओल्ड मेथड है। आप रब कर रहे हैं और पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आपको कोई भी साउंड आ रहा है, वो बोलता है जी आ रहा है, तो इट मींस पेशेंट इज हियरिंग। अब आपके इसमें देखिए, ये हियरिंग के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो हियरिंग असेसमेंट करते हैं। एक एयर कंडक्शन होता है, एक बोन कंडक्शन होता है। एयर कंडक्शन जो होता है वो आप पिना से सामने से टच करते हैं, और आपको ये जो होता है दोनों चीजें बताता है, एयर कंडक्शन के बारे में भी एंड बोन कंडक्शन मतलब नर्व्स के बारे में भी बताता है। सो एयर कंडक्शन नॉर्मली आपका डबल होता है या ग्रेटर होता है देन द बोन कंडक्शन होता है। सो आपने ये जब रब किया तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि पेशेंट की एयर कंडक्शन है, इट मींस नर्व कंडक्शन भी है। सो पेशेंट इज हियर, पेशेंट की सुनाई है, कितनी भी है वो हमें अभी नहीं पता। सो सेकंड मेथड ये होता था ओल्ड डेज में, आपने कोई भी घड़ी उठाई जिसके अंदर क्लिक क्लिक की साउंड आ रही है, वो आपने पेशेंट के कान के आगे रख ली 2 सेंटीमीटर अवे, एंड अगेन दोबारा से पेशेंट से आपने पूछा कि आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं। पेशेंट कहता है आ रहा है। Okay, these are the rough methods that was performing in the old days.
इसके बाद आप एक स्पीच टेस्ट करते हैं। हाउ टू परफॉर्म द स्पीच टेस्ट? देखिए स्पीच टेस्ट का सिंपल बेटा एक तरीका ये होता है कि यू हैव टू स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द ईयर। जैसे कि मुझे अगर पेशेंट का राइट ईयर एग्जामिन करना है तो पेशेंट का राइट ईयर टुवर्ड्स माय साइड होगा और मेरा फेस जो होगा उसके पेशेंट के राइट ईयर की तरफ होगा। देन आई उसकी आईज को कवर करूंगा विथ 1 आर्म लेंथ। जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग पे आएंगे हम आपको सब करवा के दिखाएंगे। यू हैव टू परफॉर्म दीज थिंग्स। तो उसकी आईज को कवर करेंगे टू अवॉइड लिप रीडिंग। आप आईज को 1 हैंड से आप ऐसे कवर करते हैं 1 आर्म लेंथ एंड अपोजिट ईयर को आप ट्रैगस को बंद कर देते हैं ताकि पेशेंट अपने दूसरे ईयर से सुन ना सके कि आप क्या बोलते हैं। You have to tell about bisyllabus words. Bisyllabus words कौन कौन से होते हैं? जैसे कि baseball, football, day night, day dreams, ताकि एक का साउंड ऊपर हो एक का नीचे हो। You have to start with whisper. Whisper क्या होता है? Actual whisper आपका होता है बेटा normal expiration voice. जैसे कि आप नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर किया, क्वाइट ब्रीथिंग, उसके बाद जो नॉर्मल एक्सपायर कर रहे होते हैं उसके दौरान जो आप साउंड प्रोड्यूस करें, लाइक ठीक है, इस तरीके से विस्पर होता है। आप विस्पर से जब पेशेंट को सुनाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको सुनाई दे, जो आपको सुनाई दे रहा है रिपीट इट। अगर वो रिपीट कर रहा है इट मींस पेशेंट हियरिंग इज नॉर्मल। अगर पेशेंट विस्पर पे नहीं सुन रहा देन जो नॉर्मल कन्वर्सेशन इस वक्त आपकी और हमारी हो रही है, देन यू कम टू द नॉर्मल कन्वर्सेशन। फिर पेशेंट से अगेन दोबारा से सेम वर्ड्स पूछते हैं। अगर फिर भी कहता है कि आई कांट हियर, तो फिर आप आ जाते हैं लाउड, बहुत जोर से बोलना शुरू करते हैं। अगर फिर भी उस पे भी पेशेंट नहीं सुन रहा देन यू शाउट। ठीक है, सो अगर पेशेंट विस्पर पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप इससे असेस कर लेते हैं कि पेशेंट की मिनिमम जो हियरिंग लॉस है वो 30 डेसिबल है। हम जो हियरिंग को मेजर करते हैं वो यूनिट उसका डेसिबल होता है। यू विल read these things in 4th year PTA में, pure tone audiometry। I will take inshallah your class। So 30 डेसिबल लॉस है अगर विस्पर पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो 60 डेसिबल लॉस है। अगर लाउड पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो समझ लीजिए कि 90 डेसिबल तक का लॉस है। ठीक है, शाउट पे भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो समझ लें कि 100% लॉस है पेशेंट का। ठीक है, सो यू हैव असेस इन दिस वे द नॉर्मल हियरिंग। अब जब वॉइस टेस्ट कर लिए, स्पीच टेस्ट आपने कर लिया, उसके बाद आप एक टेस्ट करते हैं ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। सो दिस इज योर ट्यूनिंग फोर्क। डिड यू सी दिस ट्यूनिंग फोर्क? इसके अंदर आपको ये एक हैंडल नजर आ रहा होगा, इसका ये पैड नजर आ रहा होगा, ओके, एंड दीज लिम्स, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सो यू होल्ड इन दिस वे टू द ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक कहाँ किया जाता है? इसका अपर 1/3 एंड लोअर 2/3। कहाँ स्ट्राइक करना होता है बेटा? इसको आप स्ट्राइक करते हैं आइदर योर एल्बो और योर नी और योर शूज हील। ठीक है, तो ट्राई टू स्ट्राइक ऑन एल्बो। अब ये स्ट्राइक करने के बाद आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। आ रहा है बेटा आवाज ट्यूनिंग फोर्क का आप लोगों को? स्टूडेंट्स, डिड यू हियर मी? ओके, सो आप जो हैं जब इसको स्ट्राइक करते हैं तो फर्स्ट टेस्ट यू विल परफॉर्म रेनीज टेस्ट और वेबर टेस्ट। 3 टेस्ट यू विल परफॉर्म विद दिस। आपने ये स्ट्राइक किया और पेशेंट को रखते हैं 2 सेंटीमीटर अवे। भाई आपको सुनाई दे रहा है? वो बोलेगा यस आ रहा है। फिर आप उसके मेस्टॉइड पे ये रखेंगे। आई कैन शो यू द पिक्चर। सो आप उससे पूछते हैं कि आपको कहाँ बेहतर सुनाई दे रहा है? मेस्टॉइड पे बेहतर सुनाई दे रहा है? कौन सी आवाज तेज है? मेस्टॉइड वाली तेज है या आपकी आगे की तेज है? जब आपको वो कहता है कि आगे की तेज है पीछे की नहीं है, इट मींस रिनीज पॉजिटिव। रिनीज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, आपने एक ईयर में किया फिर दूसरे ईयर में करते हैं, ये मॉडिफाइड रिनीज है। अच्छा, नॉर्मल रिनीज कौन सा होता है? आप स्ट्राइक करते हैं, पहले पेशेंट को पीछे मेस्टॉइड पे रखते हैं, जब पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाए फिर आगे ले आते हैं। सो इट मींस रिनीज इज better than the bone conduction. So Renie's positive. Renie's positive means your patient is normal or patient has sensory neural hearing loss, some sort of problem in nerve. ठीक है बेटा, Renie's positive.
सेकंड टेस्ट आप जब परफॉर्म करेंगे, देखिए आप वन टेस्ट से कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है या नहीं है या पेशेंट नॉर्मल है। सो सेकंड टेस्ट यू विल परफॉर्म वेबर टेस्ट। आपने स्ट्राइक किया, अच्छा स्ट्राइक करने के बाद आपकी हैबिट होनी चाहिए, स्ट्राइक करने के बाद आप खुद जरूर सुने कि ये वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो जब आपने स्ट्राइक किया उसके बाद आप पेशेंट के या तो ये गलेविला पे रखते हैं या फिर ये वर्टेक्स पे रखते हैं। आपको नजर आ रहा है बेटा, नजर आ रहा है? डिड यू सी? ओके, सो जब आप ये ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करके या तो वर्टेक्स पे रखते हैं या गलेविला पे रखते हैं एंड पेशेंट से पूछते हैं कि आपको साउंड कहाँ आ रहा है, डिड यू हियर इट इन द सेंट्रल, या दोनों कानों में सुनाई इक्वल दे रहा है या दोनों में नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, या किसी एक कान में साउंड जा रहा है। अगर पेशेंट कहता है कि आपने लेट्स सपोज ट्यूनिंग रिनीज टेस्ट किया, राइट ईयर का भी किया, लेफ्ट क्या किया, राइट में आपका ट्यूनिंग जो है अपना रिनीज टेस्ट नेगेटिव है और पेशेंट आपका कहता है कि वेबर्स टेस्ट से सर मेरा जो है लेटरलाइज हो रहा है टुवर्ड्स द राइट ईयर, ठीक है, और आपने लेफ्ट का जो है रिनीज पॉजिटिव है। जब आपका लेफ्ट का पॉजिटिव होगा और राइट में वेबर लेटरलाइज हो रहा है और ट्यूनिंग फोर्क का आपका जो है रिनीज नेगेटिव है, तो इट मींस पेशेंट को राइट ईयर में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ठीक है बेटा। अब देखें दो टेस्ट को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, एक रिनीज एक वेबर्स टेस्ट। पहले आपने राइट ईयर से टेस्ट किया, राइट ईयर आपका रिनीज नेगेटिव है, मतलब बोन कंडक्शन बेटर है एयर कंडक्शन से, ओके, और लेफ्ट ईयर में रिनीज पॉजिटिव है, एयर कंडक्शन बेटर देन द बोन कंडक्शन, और वेबर टेस्ट आपका राइट ईयर में लेटरलाइज हो रहा है। सो इट मींस पेशेंट हैज राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, राइट ईयर में कंडक्टिव हियरिंग लॉस। बट अगेन एक डिफरेंट सिनेरियो में दे देता हूं आपको। पेशेंट कहता है कि रिनीज मेरी दोनों कानों में बेटर है, मींस रिनीज पॉजिटिव है बोथ ईयर्स, बट वेबर इज लेटरलाइजिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ईयर, वेबर इज लेटरलाइजिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ईयर, इट मींस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम राइट ईयर में। क्या प्रॉब्लम है? राइट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब इसके लिए आपको एबीसी टेस्ट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। वो कैसे करते हैं? यू हैव टू स्ट्राइक, आपने सुना, आपको सुनाई दे रहा है, उसके बाद आप पेशेंट का ट्रैगस बंद करते हैं और पेशेंट के मेस्ट्राइड पे रख देते हैं, पेशेंट के मेस्ट्राइड पे रख देते हैं। जब पेशेंट कहता है कि अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अगेन आप ये सेम थिंग यू कैन रिपीट ऑन यूर ईयर। उसी वक्त आप उसको जो वाइब्रेट कर रहा है उसको अपने कान पे रखेंगे। जब आपने अपने कान पे पीछे मेस्ट्राइड पे रखा और आपने अपना ट्रैगस भी बंद करना है, एबीसी शुड बी परफॉर्म इन दिस वे। आपने स्ट्राइक किया, पेशेंट के कान पे पीछे मेस्ट्राइड पे या आपने ट्यूनिंग फोर्क का टिप हैंडल रखा और आपने उसके बाद उसका ट्रैगस बंद कर दिया। जब पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाता है, स्टॉप हियरिंग, आप फौरन से विथ इमीडिएट आप अपने कान पे रख देते हैं। अगर आपको सुनाई दे रहा है, इट मींस पेशेंट हैज डिक्रीज बोन कंडक्शन, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन उसका डिक्रीज है। मगर अगर आपको भी नहीं सुनाई दे रहा तो इट मींस पेशेंट एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन इज नॉर्मल, ठीक है बेटा। सो ये तीन टेस्ट हम ट्यूनिंग फोर्क से करते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे है, पेशेंट हैज कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। आप लोगों की लेवल पे ट्यूनिंग फोर्क से ये बहुत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जो होगा वो हम आपको फोर्थ ईयर में वो बताएंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, अब आप आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फेशियल नर्व एग्जामिनेशन। सो फेशियल नर्व एग्जामिनेशन आप कैसे करते हैं बेटा? पेशेंट के बिल्कुल सामने बैठ के एंड पेशेंट को कमांड देते हैं कि माथे पे बल लाए, मतलब अपनी आंखों से छत की तरफ देखेंगे। सी हाउ आई एम परफॉर्मिंग, ये रिंकल्स आपको फोरहेड्स पे नजर आ रहे हैं, बायलेटरल देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। अगर किसी एक साइड पे रिंकल्स नहीं आ रहे हैं, इट मींस that side of facial nerve palsy है। Please explain the last scenario again. Okay बेटा, I will explain this in the last. Okay, अभी हम पहले थोड़ा सा एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं because of the short of the time, ऐसा ना हमारा एग्जामिनेशन रह जाए। Okay, first you examine the facial nerve. facial nerve में आप कैसे करते हैं? पेशेंट को बोलते हैं कि पहले ऊपर देखें और फोरहेड्स पे आपके रिंकल्स देखते हैं उस पेशेंट के कि दोनों तरफ इक्वल हैं या नहीं। अगर किसी साइड पे नहीं आ रहे और सेकंड आप उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं इन द मिड विद द थंब। अब ये देखिए मैंने इसे रखा
और मैं ऊपर देख रहा हूँ। अगेन यू हैव टू सी द रिंकल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप पेशेंट को कहते हैं कि आई जोर से क्लोज करें और अपने थम्स को या फिंगर्स को उसके ऊपर रख देते हैं और पेशेंट को आप अपना प्रेशर लगाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आंखें खोलने की कोशिश करें। और पेशेंट जब आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है और आपके फिंगर्स पे या थंब पे इक्वल प्रेशर आ रहा है, मतलब मसल्स काम कर रही हैं, इट मींस पेशेंट की फेशियल नर्व इंटैक्ट है। देन ऑन इंस्पेक्शन यू कैन सी दिस नेज़ोलेबियल फोल्ड कि ये दोनों तरफ प्रेजेंट है या किसी तरफ एब्सेंट है। जिस साइड की फेशियल नर्व पैल्सी होगी उस साइड का ये नेज़ोलेबियल फोल्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप एंगल को देख रहे होते हैं, एंगल ऑफ माउथ को। एंगल ऑफ माउथ में भी आपको नजर आ रहा होगा जिस साइड की फेशियल पैल्सी होगी वो पेशेंट का एंगल ऑफ माउथ डेविएटेड होगा, ठीक है, ड्रॉप होता है। अच्छा, उसके बाद आप पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने मुंह में एयर भरें या विसिल करें। पेशेंट विसिल नहीं कर पाएगा, एयर को होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे ही एयर भरेगा उसको जिस साइड पैल्सी होगी वहां से आपकी एयर लीक हो रही होगी, एयर लीक फ्रॉम दैट साइड, ठीक है बेटा। सो इन दिस वे यू कैन एग्जामिन द फेशियल नर्व। अच्छा, फेशियल नर्व में बेटा दो लीजन्स हो सकते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर पेशेंट को लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन मींस बिलो द ब्रेन, तो फिर पेशेंट का जो होता है पूरा हाफ ऑफ द फेशियल साइड पैल्सी होती है, जिस साइड पे भी लीजन होगा लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में। मतलब फोरहेड के रिंकल्स भी एब्सेंट होंगे, नेज़ोलेबियल फोल्ड भी होगा, आई भी क्लोज नहीं हो रही होगी। आईज जब वो क्लोज करेगा तो आधी आंख उसकी ओपन रहती है एंड उसके बाद एयर भी लीक हो रही होगी। अगर पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो फिर पेशेंट के जो ये वाले फैक्ट्स हैं ये प्रेजेंट होंगे। नेज़ोलेबियल फोल्ड भी बन रहा होगा, एयर भी लीक नहीं हो रही होगी। सिर्फ उस पेशेंट में जो प्रॉब्लम होगा वो एक तो आई उसकी कंप्लीट क्लोजर नहीं हो रही होगी और उसके फोरहेड का रिंकल एब्सेंट होंगे। दीज आर टू थिंग्स डिफरेंट, रीड फ्रॉम बुक्स, ठीक है। फेशियल नर्व एग्जामिनेशन आपने कर लिया। आफ्टर एग्जामिनिंग फेशियल नर्व, क्योंकि देखिए ईयर हमारा बैलेंस से भी रिलेटेड है, सो बैलेंस का काम उसमें आपको नेस्टेगमस चेक करना होता है। सो यू हैव टू सी द नेस्टेगमस। हाउ टू चेक द नेस्टेगमस? आपने एक फिंगर रखनी होती है 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पेशेंट आईज। उसके बाद आप एकदम से पेशेंट को कहते हैं जिस साइड मेरी फिंगर जा रही है आपने अपनी आंखों को उस तरफ घुमाना है। सो पहले आपने पेशेंट की आईज के अंदर देखना है। व्हाट यू विल सी, व्हाट इज नेस्टेगमस? स्टूडेंट्स जस्ट एक्सक्यूज मी बेटा, मुझे वार्ड से फोन आ रहा है, एक इमरजेंसी है। ओके बेटा, सॉरी, सिविल हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गई थी, दैट्स व्हाई आई हैव टू मैंडेटरी टू अटेंड दैट वन। ओके, सो आपने फेशियल नर्व एग्जामिन कर लिया, उसके बाद आप नेस्टेगमस चेक करते हैं। सो ड्यूरिंग चेकिंग द नेस्टेगमस आपने फिंगर की तरफ आपने अपनी फिंगर रखनी है, पेशेंट को आपने पेशेंट की आईज के अंदर ओवर द प्यूपिल देखना है। क्या देखते हैं बेटा नेस्टेगमस में? आप नेस्टेगमस में क्या, व्हाट इज नेस्टेगमस? एनीबॉडी? Students, what is nystagmus? देखिए बेटा, इनवॉलेंट्री ऑस्कुलर मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल। उसके अंदर आप जो आपका ये लेंस होता है ना पूरा, आपको वो हिलता हुआ नजर आता है। सो दैट शुड बी इनवॉलेंट्री ऑस्कुलर मूवमेंट ऑफ द आई। उसके अंदर आपको जब आप लेंस देखेंगे तो लेंस के अंदर आपकी जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं। जर्किंग मूवमेंट्स दिस मे बी हॉरिजॉन्टल,
this may be vertical, or this may be rotatory. It's depend on the cause. Peripheral cause होता है इसके और central cause होते हैं, जो ये आपको आई वाले भी पढ़ाएंगे and हम भी 4th year में आपको पढ़ाएंगे. So you have to see that one. But to see the nystagmus, we need a glasses, Frenzel glasses. Frenzel glasses patient को पहने हुए होते हैं. आप वो YouTube पे या पिक्चर में कहीं पे भी गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि Frenzel glasses when look, तो वो आई कैसे नजर आती है, लेंस बहुत बड़े नजर आते हैं, and you can clearly see these involuntary movements. Okay, जिस पेशेंट में प्रेजेंट हो. After checking nystagmus present है या नहीं है, then you mark it कि हाँ present है. After checking nystagmus, उसके बाद आप पेशेंट का एक टेस्ट होता है फिस्टुला टेस्ट, बट यूजुअली वी परफॉर्म दिस फिस्टुला टेस्ट इन द लास्ट. क्यों, उसका मैं आपको रीजन बता दूंगा व्हाई वी परफॉर्म इन द लास्ट. अच्छा, इसके बाद आप फेशियल नर्व एग्जामिनेशन के बाद एंड फिस्टुला टेस्ट हम तो लास्ट में करेंगे. सो यू कैन परफॉर्म द सेरिबेलर टेस्ट. सेरिबेलर टेस्ट क्यों करते हैं बेटा? यू नो दैट योर ईयर इज हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग योर बैलेंस. सो आपका बैलेंस जो होता है वो कहाँ से होता है? दैट्स फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, पेरिफेरल, और आपका ब्रेन सेरिबेलम से होता है, एंड योर ईयर होता है. सो यू हैव टू रूल आउट कि अगर पेशेंट को वर्टाइगो हो रहा है, इफ द पेशेंट हैज वर्टाइगो, सो ये वर्टाइगो कहाँ से रिलेटेड हो सकता है? दिस मे बी फ्रॉम सेरिबेलम है, दिस मे बी फ्रॉम सर्वाइकल, आपके स्पाइनल कॉर्ड से हो सकता है, और आपका सेकंड आपको जो मैंने अभी बताया कि ईयर से रिलेटेड. सो फर्स्ट यू परफॉर्म द सेरिबेलर टेस्ट. सेरिबेलर टेस्ट में आप देखें प्रोनेशन, सुपिनेशन. ठीक है बेटा, प्रोनेशन, सुपिनेशन वन टेस्ट. सेकंड टेस्ट यू कैन परफॉर्म द फिंगर नोज टेस्ट. फिंगर नोज टेस्ट आप पेशेंट को बोलते हैं कि पूरी फिंगर अपनी आर्म को एंड मुख्तलिफ डायरेक्शन में रखते रहते हैं. सो फिंगर नोज टेस्ट आप इसलिए करवाते हैं बेटा कि सेरिबेलम फाइनली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, अच्छा, सेरिबेलम में फिंगर नोज टेस्ट करने के बाद बेटा इसके बाद आप जो है पेशेंट को खड़ा कर देते हैं. पेशेंट को कहते हैं कि खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, और उनके जो होते हैं अगर उसने कोई भी शूज या चप्पल या सॉक्स जो भी पहने हुए वो बोल देते हैं कि रिमूव कर दें. आप परफॉर्म करते हैं रोमबर्ग टेस्ट. रोमबर्ग टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करते हैं? पेशेंट को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं और पेशेंट के हाथ जो होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, एंड पेशेंट को स्ट्रेट, नेक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एंड पेशेंट को जैसे ही खड़ा होगा आप पहले पूछते हैं कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं. उसके साथ आप भी खड़े हो जाएंगे. यू हैव टू स्टैंड विद द पेशेंट, और आपके दोनों हाथ पेशेंट के यूं साइड में होने चाहिए. खुदा न खास्ता पेशेंट को अगर वर्टाइगो हो रहा है और पेशेंट गिरने लगे, देन यू कैन होल्ड द पेशेंट. ठीक है, पहले आपने सीधा खड़ा किया और आपने पेशेंट की आंखें क्लोज नहीं करवाई. उसमें आपने पेशेंट से पूछा कि कोई चक्कर आ रहे हैं, वर्टाइगो हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चक्कर नहीं आ रहा है, देन आप पेशेंट को कहते हैं ओके क्लोज योर आईज. जब पेशेंट आंखें क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद पेशेंट से फिर पूछते हैं कि आपको चक्कर आ रहे हैं या नहीं. फिर पेशेंट अगर कहता है हाँ चक्कर आ रहे हैं, इट मीन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आपका पेरिफेरल है जो आपके आईज से कंपनसेट हो रहा था. जो जैसे ही पेशेंट ने आईज क्लोज की उसको चक्कर आना शुरू हो गए. ओके, सो रोमबर्ग टेस्ट शो यू द पेशेंट हैज वर्टाइगो. इट इज कंपनसेटेड बाय आइदर आई क्लोजर और आई ओपनिंग से. सेरिबेलम आपने परफॉर्म कर लिया है, आप दोबारा से ये रोमबर्ग टेस्ट पढ़ लीजिएगा एंड आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग रोमबर्ग टेस्ट यू हैव टू चेक द गेट. अगर पेशेंट को सेरिबेलम में प्रॉब्लम होगा, जैसे ही पेशेंट को आप एक लाइन पे कैट वॉक करवाते हैं, सो जैसे ही आप उसको कैट वॉक करवाना स्टार्ट करेंगे, सो पेशेंट विल फॉल. पेशेंट कहाँ पे फॉल होता है बेटा? अगर जिस साइड पे लीजन है, अगर पेशेंट के राइट साइड पे सेरिबेलम में लीजन है तो पेशेंट आपका राइट साइड पे फॉल होगा. अगर पेशेंट के लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट लेफ्ट साइड पे फॉल होगा. सो यू हैव टू असेस इन दिस वे कि पेशेंट के कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. स्टूडेंट्स प्लीज क्लोज योर वीडियोस. स्टूडेंट्स, ओके ओके, सो यू हैव टू चेक इन दिस वे. आपके जो पेशेंट्स के होंगे आप उसको जो है सेरिबेलम टेस्ट करेंगे. आफ्टर परफॉर्मिंग सेरिबेलर टेस्ट आप पेशेंट को जो है बिठा देते हैं. अगेन बिठाने के बाद इन द लास्ट व्हाट यू विल डू,
you will do the fistula test. How to perform the fistula test? आप क्या करते हैं, जो जिस साइड पे आपने फिस्टुला परफॉर्म करना है, आपने पेशेंट के ट्राइगस के ऊपर फिंगर रखी एंड आपने 1 2 3 करके उसको प्रेस करके रख देना है, अंदर प्रेस कर देना है। इससे क्या होता है, आप अपने ईयर पे भी ये भी एग्जामिन कर सकते हैं। अपने ट्राइगस पे फिंगर रखें सब लोग एंड इसको प्रेस करें 1 2 3। इसी व्हाट हैपन विद दिस, आपके एकदम से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक हो जाता है, ऑक्लूड हो जाता है। जैसे ही आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑक्लूड होगा, व्हाट इट कॉजेज चेंज इन द प्रेशर इन योर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जैसे एक ऑक्लूड होगा, प्रेशर चेंजेस होंगी। इफ पेशेंट कंप्लेन कर रहा है आफ्टर ऑक्लूजन, आपने पेशेंट से पूछा कि चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, सो पेशेंट कहेगा कि नहीं चक्कर नहीं आ रहे, तो दिस इज फिस्टुला टेस्ट इज नेगेटिव। मगर पेशेंट कहता है कि चक्कर आ रहे हैं सर, तो फिर आपका पेशेंट को फिस्टुला टेस्ट इज पॉजिटिव। Where fistula is lies? Fistula should be lie in your horizontal semicircular canal. Horizontal semicircular canal में fistula होगा। जैसे ही आपने प्रेशर दिया, this is important. क्यों हम परफॉर्म करते हैं फिस्टुला टेस्ट? लेट सपोज आपके पेशेंट को राइट CSOM है और आप उसकी राइट टेम्पेनोप्लास्टी या राइट वेस्टवाइड एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं और आपने फिस्टुला टेस्ट नहीं किया। फिस्टुला टेस्ट नहीं किया, पेशेंट को तो पहले से फिस्टुला था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, और आपने जैसे ही फिस्टुला टेस्ट नहीं किया, पेशेंट की सर्जरी के बाद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, और आपकी सर्जरी की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गया है। सो पेशेंट में सू यू इन द कोर्ट। सो दिस होल एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट। फेशियल नर्व, क्योंकि ये भी पोस्ट ऑपरेटिव आपके पेशेंट का फेशियल नर्व पैल्सी हो सकती है, फिस्टुला टेस्ट आपको मैंडेटरी है परफॉर्म करना। ओके बेटा, सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस फिस्टुला टेस्ट, आप पेशेंट को थैंक्स बोलते हैं, उसको रीड्रैप करते हैं, उसके जो शर्ट वगैरह जो उसने आपने बटन आपने या दुपट्टा है वो उसको कह देते हैं कि दोबारा वो कर लें, एंड उसके बाद आप उसको पूछते हैं कि कोई और मसला है तो बता दीजिए। ओके, सो दिस इज होल योर ईयर एग्जामिनेशन। Okay, at your level, this is your whole ear examination, from inspection to palpation. Okay, one thing I missed. What I have missed, palpation. So you have to start with the palpation. Palpation आप periauricular करते हैं बेटा पहले, after doing inspection. फिर पिना को palpate करते हैं, top, mid, border. फिर आप mastoid को palpate करते हैं, top, mid, tip. So after palpation, आप जो है उसके बाद आपने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को विद द हेल्प ऑफ लाइट से एग्जामिन किया, फिर ईयर स्पेक्युलम उठाया, फिर ईयर स्पेक्युलम के बाद आपने ओटोस्कोप देखा, ओटोस्कोप के बाद आपने टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को एग्जामिन किया, देन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद आपने स्पीच टेस्ट किए, स्पीच टेस्ट में आपने वॉइस टेस्ट कर लिए, विस्पर, नॉर्मल, लाउड, देन शाउट, एंड उसके बाद आपने फिर ट्यूनिंग फोक टेस्ट कर दिए। ट्यूनिंग फोक में 3 टेस्ट हमने किए थे, रेनीज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट एंड ABC टेस्ट। आई repeat these all tests again after my presentation. Okay, and after tuning fork test you have to examine the facial nerve examination. facial nerve के बाद आपने जो है उसमें पता लगा दिया कि facial nerve palsy है या नहीं है, then upper motor neuron है या lower motor neuron disease है, if there is palsy। उसके बाद आपने facial nerve examination करने के बाद आपने पेशेंट का जो है finger nose test and जो है pronation supination करवाया। Then after this you have to perform Romberg test. Romberg test करने के बाद आपने पेशेंट को जो है गेट चेक कर लिया, गेट चेक करने के बाद आपने फिस्टुला टेस्ट। Why we have done fistula test in the last? अगर पेशेंट को फिस्टुला होता बेटा और आपने मिड ऑफ द एग्जामिनेशन ही फिस्टुला टेस्ट कर दिया, तो आप पेशेंट को वर्टाइगो स्टार्ट हो गया, तो पेशेंट के आप सेरिबेलर टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को तो चक्कर आ रहे हैं। So that's why we perform this test in the last, ठीक है। एक तो ये इसका पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा जो आ जाता है एग्जामिनेशन में, we have didn't miss anything I think so। अगर कोई चीज रह गई हो तो मुझे जरूर रिकॉल करवाइएगा। एंड ट्यूनिंग फोक टेस्ट, देखिए बेटा ट्यूनिंग फोक टेस्ट से हम 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रेनीज टेस्ट, वेबर टेस्ट एंड ABC टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट आपने स्ट्राइक किया अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 के बीच में, एंड यू हैव टू होल्ड दिस ट्यूनिंग फोक विद द हैंड। इसका जो एक हैंडल होता है इसके साथ। एंड हाँ, वन थिंग इम्पोर्टेंट आई कैन टेल यू, आपके ड्यूरिंग होल्डिंग आपके हैंड यहाँ पे टच नहीं होने चाहिए।
वाई वाई जब आप स्ट्राइक करेंगे, अगर आपके हैंड कहीं पे भी यहाँ पे टच हो रहे होंगे, सो योर ट्यूनिंग फोर्क विल नॉट प्रोड्यूस अ साउंड, सो आपका टेस्ट जो होगा सही नहीं होगा। So just you have to hold in this way, okay? आपने स्ट्राइक किया, देन पेशेंट को पहले पीछे में स्ट्राइड पे रखा, सुनाई दे रहा है, जब स्टॉप हो जाए आगे ले आए, जी मुझे बेहतर सुनाई दे रहा है, इट मींस रिलीज पॉजिटिव है, ओके? दोबारा अगेन आपने सेकंड ईयर में रिपीट किया, जब सुनाई देना बंद हो जाए देन आपने यहाँ रखा, रिलीज पॉजिटिव है, ओके? आफ्टर रिलीज यू हैव टू परफॉर्म वेबर टेस्ट। अब मैंने वेबर टेस्ट या तो मैंने गलेविला वर्टेक्स पे रखा, एंड यू हैव टू आस्क पेशेंट के आपका ड्यूरिंग रिलीज टेस्ट के भाई आगे का आवाज बहुत तेज आ रहा है या पीछे का अच्छा आ रहा है। पेशेंट बता देता है कि आगे का अच्छा है, इट मींस रिलीज पॉजिटिव, पीछे का अच्छा है, इट मींस वेबर्स आपका रिलीज जो है नेगेटिव है, ओके? वेबर टेस्ट में आपने ये पेशेंट से पूछना है कि साउंड कहाँ आ रहा है, सेंट्रल है या लेटरलाइज हो रहा है किसी भी साइड पे, लेफ्ट ईयर या राइट ईयर पे, या दोनों कानों में एक जैसा साउंड आ रहा है। अगर दोनों में साउंड सेम है, सो इट मींस आपके पेशेंट्स का जो है वेबर सेंट्रल। वेबर सेंट्रल का मकसद ये है कि या तो दोनों ईयर नॉर्मल है या दोनों ईयर में एक जितनी सेम मतलब हियरिंग लॉस है, मतलब 40 डेसिबल इसमें लॉस है, 40 डेसिबल इसमें लॉस है, ओके? अब रिलीज नेगेटिव, रिलीज अगर नेगेटिव है इट मीन सम सॉर्ट ऑफ ईयर, मतलब आपके अगर राइट ईयर में रिलीज नेगेटिव हो गया, सो रिलीज आपका राइट ईयर में नेगेटिव है, वेबर आपका राइट ईयर की तरफ आ रहा है, इट मींस पेशेंट हैज राइट ईयर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। मगर रिलीज बायलेटरल बोथ ईयर में पॉजिटिव है और आपका वेबर जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है, सो इट मींस राइट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब थर्ड टेस्ट हम करेंगे ABC टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन के लिए देखें, जब आप स्ट्राइक करते हैं पहले आपने जैसे पेशेंट के ये मेस्ट्रॉइड पे रखा और आपने ट्रैगस को बंद करना है, ट्रैगस को आपने ब्लॉक कर दिया ताकि पेशेंट का एयर कंडक्शन ब्लॉक हो जाए। पेशेंट से पूछेंगे कि जब आपको साउंड सुनाई देना बंद हो जाए आप फौरन से बताएंगे, ओके? जैसे ही उसको बंद हो जाता है आप अगेन अपने ईयर पे रख देते हैं, मगर आपने भी अपना ट्रैगस बंद करना है टू चेक कि भाई अगर आपको सुनाई दे रहा है इट मींस पेशेंट एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन इज डिक्रीज, दिस इज बिकॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। मगर अगर आपको भी नहीं सुनाई दे रहा तो इट मींस पेशेंट या तो नॉर्मल है या आपके ईयर में भी प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा? तो आपने ये टेस्ट करना होता है। जस्ट एक्सक्यूज मी, मुझे सिविल से फोन आ रहा है। Okay, student, sorry, call आ गई थी for a patient. Okay, these 3 tests, tuning fork test, you can perform. Okay, fistula test. अभी एक क्वेश्चन आया कि रिपीट फिस्टुला टेस्ट। देखिए फिस्टुला टेस्ट कैसे करते हैं बेटा, आपने पेशेंट के ईयर को जिसको एग्जामिन करना है, आपने फिस्टुला टेस्ट कैसे करना है, आपने ट्रैगस के ऊपर देखिए फिंगर रखी 1 2 3 के बाद आपने इसको ऑक्लूड कर दिया ताकि ये बंद रहे, और आपने पेशेंट से पूछना है आपको कोई चक्कर आ रहे हैं या नहीं। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं सो इट मींस फिस्टुला टेस्ट पॉजिटिव, मगर अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं तो इट मींस फिस्टुला टेस्ट नेगेटिव है, ओके? ये होता है फिस्टुला टेस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट बेटा आप पेशेंट को कहते हैं कि खड़े हो जाएं, और खड़े होने से पहले उनके आप मतलब जो पैरों में कोई भी शूज हैं, सॉक्स हैं, वो सब चीजें रिमूव करवा देते हैं
शूज और सॉक्स या चप्पल वगैरह जो भी पहने हुए, और उसको बोलते हैं कि सीधे बिल्कुल खड़े हो जाएं, खड़े होकर हाथ को बिल्कुल सीधा करना है, लाइक स्टैंडिंग पोजीशन हम स्ट्रेट कैसे होते हैं, ठीक है, एंड नेक शुड बी स्ट्रेट। फिर आप पेशेंट से पूछते हैं कि कोई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, पेशेंट आपको कहता है कि चक्कर आ रहे हैं खड़े होने से, इट मीन्स रोम्बक पॉजिटिव, ये नहीं कि नेगेटिव है। अगर नहीं आ रहे हैं सो फिर आप पेशेंट को कहते हैं कि अच्छा अब आप अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। जब पेशेंट आंखें बंद करता है उसके बाद आपको फील होता है पेशेंट थोड़ा सा हिल रहा होता है, इट मीन्स पेशेंट हैज रोम्बक पॉजिटिव, ठीक है बेटा। सो रोम्बक जब पॉजिटिव होता है इट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी इन द पेरिफेरल पाथवे। पेरिफेरल पाथवे मतलब इंट्राक्रेनियल नहीं, पेरिफेरल, जैसे कि ईयर में प्रॉब्लम हो सकता है, आई में प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है बेटा, स्पाइनल कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है। रोम्बक पॉजिटिव मीन्स सम सॉर्ट ऑफ पेरिफेरल प्रॉब्लम, दैट्स रोम्बक टेस्ट। एनी क्वेश्चन students, any question? Sir, after Romberg test can you please repeat what is the next test? देखिए बेटा रोम्बर्ग टेस्ट आपने कर लिया, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ईयर एग्जामिनेशन, अगर पेशेंट कोई भी आपके पास वर्टाइगो के साथ आता है सो यू हैव टू परफॉर्म डिक्स हेल्पाइक टेस्ट। डिक्स हेल्पाइक टेस्ट, डिक्स हेल्पाइक कैसे करते हैं, आप पेशेंट को एक काउच पे ले जाते हैं, काउच पे आप पेशेंट को बिठा देते हैं और इस तरीके से बिठाते हैं कि पेशेंट का जो हेड होगा वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर थोड़ा सा टेबल से पीछे होगा, नीचे होगा, मतलब वो उसका हेड जो है वो टेबल पे नहीं आ रहा होगा, ठीक है, डाउन होगा। आप पेशेंट का राइट या लेफ्ट किसी भी साइड, एक साइड पहले हेड करके और पेशेंट के हेड को एकदम से टेबल से पीछे ले जाते हैं। These all tests you will learn when you perform it. You can see on the pictures, but ये आपको जो है ना जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएंगे। सो आपको ये हम वर्ड में ही दिखा सकते हैं, या आप YouTube पे डिफरेंट वीडियोस देखें जिसमें आपको रोम्बर्ग टेस्ट भी नजर आ जाएगा, डिक्स हेल्पाइक भी नजर आएगा, फेशियल नर्व एग्जामिनेशन भी नजर आ जाएगा, ईयर एग्जामिनेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द YouTube, so you have to see all these things. Sir, why the test is called fistula test? Is due to some fistula in ear. Yes beta, some fistula in the external आपके horizontal semicircular canal. देखिए how many semicircular canal present in your ear? Did you have remember, students? 3. Very good. Name that 3 semicircular canal. Name these 3 semicircular canal. One is the horizontal semicircular canal. Second, एक तो हॉरिजेंटल हो गई, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वेरी गुड। सो देखें आपका अगर पेशेंट को जो है लेटरल, बेटा वही है, लेटरल और पोस्टीरियर सेम थी, ओके। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का सेकंड नेम लेटरल भी होता है, ओके। सो आपका अगर लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल में फिस्टुला आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी लाइक कोलेस्टिटोमा, क्रॉनिक सब्रेटिव मीडिया है पेशेंट के ईयर के अंदर, वो तो आपको एग्जामिनेशन ऑफ ईयर में नजर आ जाएगा। बट इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि भाई मुझे कोई चोट लगी थी, मैं गिर गया था, कोई एक्सीडेंट हुआ, आफ्टर RTA आई हैव स्टार्टेड वर्टाइगो एंड यू हैव परफॉर्म दिस फिस्टुला टेस्ट, सो ये इसमें कोई जो फिस्टुला है वो किसी भी कैनाल में हो सकता है, वो तो आपका हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, पोस्टीरियर में भी हो सकता है, एंटीरियर में भी हो सकता है, दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, ओके। एनी अदर क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क? हेलो जी नितालिया। बस बेटा मेरी अभी क्लास एंड हो रही है, विद इन 5 मिनट्स आई एम कमिंग। अच्छा वो वही उसके जो है वो मैं आता हूँ, कैलाश से बात हुई है, अभी किसी को भेज दो और कैलाश से टाइमिंग मालूमात कर लो उस पेशेंट की, ठीक है। Okay, beta. Any other questions? Would you like to ask? Okay. Should I leave? Okay. Any query, any problem you come in ENT ward, you can ask from us. Okay. Thank you.